fineness ratio. What is the fineness ratio? Fineness. We say fineness means, how we will spell it out? Fineness. A by B means कॉर्ड जो भी है, 70 से कॉर्ड बोलेंगे जो भी ये. Why we should know the fineness ratio? Sometimes they ask the question, the BBC, what is the fineness ratio of the aerofoil or something? So we'll say chord upon maximum thickness. अगर chord upon maximum, या अगर ये A है ये B है तो A by B. Why we need that? Fineness means we are making any object fine and fine. जैसे for example, if this is the straight plate, ये एक plate है, okay, and airflow is coming like this and hitting the plate, then again it's going like this. ऐसे जा. What is happening? This flow is touching the surface only at two places, here and here, small. ऐसे खड़ा है, air is going, it touches the edge. Means जो whatever resistance you get because of the friction of a body, वो कितना है? बस ये है और ये. और rest यहाँ आके high pressure create कर रहा है. Suppose it is moving in the forward direction. Rest creating high pressure here, और edge पे touches the skin and go. And back side, what is happening? We get wake. You get circular motion, and that circular motion create hell of the vacuum. बहुत less pressure region create करता है. So what it tries? Now in this plate, when it is moving in the forward direction, suppose it is moving in the forward direction, एक plate लेके ऐसे कर रहे हो. So what is happening? Air is touching the plate only at two places, edge. Rest यहाँ पे hit कर रहा है. On back side में vacuum create हो रहा है. This vacuum tries to pull the body back side. So this will also act as a resistance. ये भी एक तरह से resistance होगा. और this why we are getting this? Because of the shape of the body. Because of the shape of the body. And why you are getting? Because of the vacuum. So this type of resistance which any object observe because of the vacuum created behind, known as form drag. We call it form drag because of the form, जो इसका form है, whatever form, because of this form, this vacuum is created. We call it form drag. R, because of the vacuum, say another name, we call it pressure drag also. We call it pressure drag also. Form drag, pressure drag, इसके कई तरह का नाम होता है. ठीक. And another resistance we get because of the these edges, उसको हम लोग क्या कहेंगे? Because of the friction, means air is touching here. Because of the friction. किसका friction? इसके skin से जो friction हो रहा है. इसके skin से जो friction होता है. This two types of resistance, we'll call it skin friction drag. We call it skin friction. यानी जब भी कोई body like ohm is running, so when ohm is running, air is hitting here. यहाँ पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है. यहाँ से निकल रहा है एयर, और सपोज नीचे जगह है, नीचे से निकल रहा है, या ये जो उसको जो भी टच कर रहा है. बिकॉज ऑफ दिस वी आर गेटिंग फोर्स, दिस वन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. एयर इज रबिंग द सरफेस एंड मूविंग. एंड नेक्स्ट इज बैक साइड, जो वेग क्रिएट हो रहा है वो भी खींच रहा है कि नहीं. So we generally are getting these two type of drag. If I write it SFD will do plus
form drag or pressure drag. दिख रहा है? Form drag or pressure drag. Skin friction drag plus form drag. Or these two drags, how we are getting this two resistance? How we are getting this? Because of the profile of the body. Profile means shape of the body. So that's why the sum of this we call profile drag. We call it profile drag. है ना? प्रोफाइल ड्रैग जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये दो चीज तो जरूर मिलेंगी. एक तो जो एयर उसको टच कर रही है उसकी वजह से रेजिस्टेंस हो रहा है, एक जो पीछे वेग सा क्रिएट हो रहा है जब आप भाग रहे हैं, यू आर रनिंग, तो वो वेग क्या कर रहा है? वैक्यूम की पॉलिसी क्या होती है आपको स्ट्रक करने की ना, दिस साइड यू हैव द हाई प्रेशर, दिस साइड लो प्रेशर, सो दिस प्रेशर विल आल्सो ट्राई टू पुल यू बैक. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वैक्यूम, बिकॉज समथिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ईदर फॉर्म, बिकॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ योर बॉडी, और नाउ विद द सेम जितनी इसकी लेंथ है, यू मेक सेम डायमीटर एक स्फेयर बना लो ऐसे. इस स्फेयर का जो ये डायमीटर है शुड बी सेम एज दिस वन. नाउ द एयर इज कमिंग, अब एयर आ रही है, अब ऐसे जा रही है. अभी क्या हो रहा है? पीछे का when you have made this shape means what we did, we have increased the A and we are keeping this as the same. हमने A बढ़ा दिया, यानी उसका फाइनेंस रेशियो बढ़ा दिया. पहले फाइनेंस रेशियो बहुत कम था, यहां पे सिर्फ बिड्थ थी, ये तो था ही नहीं. So when the finance ratio was very less, we are getting this. We have increased the finance ratio. When we have increased the finance ratio, we saw that weight behind the body is reduced. इस केस में, if your PD profile drag, अगर suppose form drag was 100 and skin drag was 5, so total drag was what? 100.05. means SFD plus form. $500 total 105 ना? इस केस में क्या हुआ? नाउ द फ्रंटल इज दिस, यहां पे अब आगे प्रेशर भी इसकी तुलना, इसके कंपैरिजन में कम आ रहा है और पीछे वैक्यूम भी कम हो रहा है. तो वेग बिहाइंड द बॉडी इज रिड्यूस्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द फाइनेंस रेशियो. नो डाउट, अब नाउ एयर इज टचिंग मोर स्किन कंपेयर टू दिस. तो अब यहां का SFD मानो is suppose now 15, but form is reduced to 50. So total PD now in this case is what? 65. Means by increasing the fineness ratio, no doubt we have SFD is also increasing, but rate of increase of SFD is less than the rate of fall of form drag, and total is now 165. अब हमें इससे मतलब नहीं है कि स्किन फ्रिक्शन बढ़ा, फॉर्म ड्रैग कम हुआ, क्या हुआ. हमें मतलब है कि जो टोटल व्हेन द बॉडी इज मूविंग, so it was whatever resistance it was getting, total resistance, that is reduced. So
when we have increased the finance ratio as a beneficiary, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कहाँ पे कितना कम हुआ, कहाँ कितना ज्यादा। मुझे इससे मतलब है कि भैया पहले इतना बड़ा था, अब जो कि मेरे लिए फायदेमंद है। तो मतलब तो फाइनली कि इन टोटलिटी वी आर इन प्रॉफिट। नाउ if you further increase, now you make it same थिकनेस का एरोफॉयल बना दो, जिसमें ये इतना ही है। अब इसका एरोफॉयल का फाइनेंस रेशियो और ज्यादा हो गया। अब इसमें क्या हुआ, इसकी थिकनेस तो सबकी वही है, बट विड्थ पहले इतनी हुई, अब इतनी हुई। नाउ व्हेन यू आर डूइंग लाइक दिस, suddenly we found that air is going like this, वेग कितना रह गया, जरा सा। आप सोच रहे हैं, means now because of this wake you are getting 5, because of this तो मैं यहां पे अब यू आर गेटिंग फॉर्म ड्रैग ओनली 5। स्किन फ्रिक्शन ड्रैग कितना हुआ, सपोज बहुत बड़ा ये 15 था, अब सपोज आपका ये 45 हो गया। अभी 50 हो गया, अभी भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा टोटल? इवन टोटल पीडी इज अब 50 हो गया, ठीक है। नो डाउट skin friction drag, that this resistance which you are getting because air is touching the surface, that is increasing, but the form drag, the weight behind the body is reduced in such a manner so that when this object is moving in the forward direction, total resistance we are getting only 50, where earlier we are getting 105, later on this means by increasing the fineness ratio we are reducing the profile drag of a body, means sum of skin friction and vacuum वाला drag, but एक certain increase of fineness ratio, if we increase further, और ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा पता है? तो पता लगेगा कि इसके पीछे का ड्रैग तो कम हो गया, सपोज 2 पहुंच गया, बट अब स्किन फ्रिक्शन ड्रैग जो है दैट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, वो ज्यादा इंक्रीज होगा, मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ पीछे वाला एक वो आएगा और ये सडनली आपको 60 आ जाएगा या मोर देन 70 आ जाएगा। तो आप देखेंगे टोटल प्रोफाइल ड्रैग अब बढ़ने लगे, इट विल स्टार्ट्स increasing. So we increase the fineness ratio only up to that extent till we are benefited. जैसे वो बेनिफिट अब फिर से वापस आने लगेगा। अब मान लो अब हमने किया 5 के बाद जो वेक है तुम्हारा 2 हो गया, इट बिकम्स 2, बट जो स्किन फ्रिक्शन है वो सपोज 70 हो गया, तो नाउ यू आर 70 गेटिंग 72, मीन्स इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग नाउ। तो जहां तक वो रिड्यूस हो रहा है टोटल, बस उतना ही फाइनेंस रेशियो आप बढ़ाइए। सो हम लोग हमेशा यही करते हैं कि वॉट एवर वी आर डूइंग ओनली वॉट एवर थिंग वी आर डूइंग इट ओनली अप टू दैट एक्सटेंट टिल वी आर गेटिंग बेनिफिट। जैसे हमारा वो गड़बड़ हुआ, वो बेनिफिट खत्म हुआ, हम वही रोक देते हैं, बस यही है। नहीं तो कहोगे सर ऐसी बात है, तब तो बढ़िया है सर, इसको तो और बढ़ाइए फाइनेंस रेशियो खूब बढ़ाइए सर, मजा आ जाएगा रेजिस्टेंस का। अरे नहीं भाई, नो डाउट बाय इंक्रीजिंग द फाइनेंस रेशियो वी आर रिड्यूसिंग द प्रोफाइल ड्रैग। अभी ड्रैग तो बहुत सारे होते हैं, बट ये प्रोफाइल ड्रैग जो विच वी आर गेटिंग बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द बॉडी।
अब तुम ये बताओ कि मान लो तुम भाग रहे हो, यू आर रनिंग ऐसे, तो तुम्हारे ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा या तुमको मैं ऐसे करके ऐसे उसी स्पीड से भगाऊं तो ज्यादा लगेगा? बस, अब उससे ज्यादा क्या है। लेकिन उसमें भी क्या है, अगर मान लो मैं तुमको 2 लोगों को जोड़ दूं, 2-3 लोगों को, और तब करूं, तो फिर क्या होगा, आपका इतना ज्यादा हो जाएगा कि जिस एक समय तो एक बढ़ रहा था पर दूसरा ज्यादा, पर अभी दूसरा वो पहले वाला इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि दूसरा अगर कम भी हो रहा है तो अब फर्क नहीं पड़ रहा है, अब वापस से इंक्रीज होने लगा। तो जहां तक आपको बेनिफिट है that you find the sum of this and this is reducing, तभी तक। जैसे sum of this and this starts increasing, वहीं रुक जाओ। मतलब मिनिमम आया तुम्हारा 145 वॉट 50 तक आया, और 50 के बाद जैसे ही अगला स्टेप पे अगर 51 हो गया, बस वहीं रुक जाओ, अब नहीं चाहिए, हो गया हमारा फाइनेंस रेशियो की खोज, ये हमारी फाइनेंस रेशियो की खोज हो गई पूरी, खत्म भैया, अब इसके बाद नहीं जाना। चलो।